Pictures coming in of the bulldozers getting rolled in once again. This is Yogi Adityanath versus the Mafia Raj. Third day of the demolition today. Bulldozer running on Masukuddin's house. Authorities have arrived with Pokeland and JCB. More than 16 cases are registered against this man, Masukuddin, whose house is going to be bulldozed in Prayagraj Dhumanaganj colony. Along with Masukuddin, cases are also registered against his sons, Shah Zaman and Shah Fateh. This in many police stations in Prayagraj. 10 cases registered against Masukuddin's nephew Aslub as well. Masukuddin is registered in various sections including the Gunda Act, attempt to murder, murder robbery. His two sons and nephews have more than 40 cases registered against them. Once again, the bulldozers are getting rolled in. It's the third day of the demolition, remember. The bulldozer running on Masukuddin's house. Authorities there have now arrived. As you can see in these pictures, the house is getting, the structure is getting raised down. More than 16 cases are registered against him. House is getting bulldozed. This is in Prayagraj again. Along with Masukuddin, cases are also registered against his sons, Shah Zaman and Shah Fateh. This across police stations in Prayagraj. In fact, he too is a close aide of Atique Ahmed, one of the key conspirators in the Umesh Pal case. Masukuddin's house is getting razed down once again. This, of course, after the UP Chief Minister promised this sort of action against the mafia, against Gundas. An example of this being seen again in Prayagraj, where the house is getting razed down by that bulldozer. This too is a house of Atique's aide, Masukuddin. Cases are registered against his sons and him. He is a history sheeter in that sense. At least 10 cases registered against Masukuddin and his sons across many police stations in Prayagraj. This comes at a time when the Chief Minister of UP, Yogi Adityanath, has gained the, in fact, has become, is really known as the Bulldozer Baba for the kind of action that is often taken against the mafia and against Gundas in Uttar Pradesh. Often we've seen these bulldozers raise down illegal structures, even when the case trial is underway. The man whose house is getting razed down right now is Masukuddin. He is an aide of Atique Ahmed, who of course is a Neta turned Gunda, accused and a key conspirator in the Umesh Pal murder case. Abhishek Mishra has more details on that story. Abhishek, get us more details about Masukuddin. Essentially, is an aide of Atique. What more can you tell us? Well, certainly the action is again continuing in this whole matter, and we've seen how the government and all the top officials, specifically in this case, are now one by one taking the action. And again, this action has been taken. The property belongs to the son of Mukhtar Ansari, and that is what is happening here. At the same time, it is also very important with the kind of, things have been made clear by the Yogi Adityanath government that if there is any kind of involvement, then certainly such an action will be taken. And once again, this is quite evident what is happening right now. And again, the Yogi Adityanath government and the police officials are there and taking the action in charge. But what more about this man? Also, he's a history sheeter. His family members, his sons, nephews, all of them have cases registered against them. Well, yes, certainly. And moreover, it is important that the son of Mukhtar Ansari and Umar Ansari, he has the possession of 2-floor buildings, this house, and at the same time, a police force has been deployed there in big capacity, and it's all set to get demolished as soon as possible because it has been found as illegal property once again. The kind of clearance which was required is not given, and as far as the profile is concerned, yes, he's indeed a history sheeter, a lot of cases against him. But time again, the Yogi Adityanath government and their ministers have made it again and again clear
that whosoever is found, an unlawful activity or a construction which is illegal, they will not waste any time demolishing it, and that's again something which is again happening today in Mau. So in that sense, there is an indirect link to the Umesh Pal murder case also, given that Mukhtar Ansari's kin essentially are under the scanner, isn't it? And you said that one of the floors belongs to him. Abhishek? Okay, we'll just go back to Abhishek and to get more details of this demolition. In fact, these are pictures coming in from Prayagraj. This is the house of Atique Ahmed Aide, Masukuddin essentially. Atique Ahmed, remember, is a key conspirator in the Umesh Pal murder. The house is that of an aide of Atique Ahmed, but however the man in question, Masukuddin, by far has not seemed to be involved in the Umesh Pal murder. However, this is in perfect line with what has been promised by the UP Chief Minister in terms of the action that they are taking against several mafias, gangs, gundas in the state of Uttar Pradesh. Not the first time that bulldozers have been raised in, and certainly not the last. In fact, this is continuing demolition activity that we've seen. The third day essentially today of demolition that we've been seeing in Prayagraj. Earlier, MP Atique Ahmed's wife, Shaista Parveen's house had been demolished as well, this by the Prayagraj Development Authority. And now this is Masukuddin's house, an aide of, again, Atique Ahmed getting demolished. A known history sheeter, however, not believed to be involved as of now in the Umesh Pal case. But this is an aide of Atique Ahmed that is getting demolished. Pictures coming in from Prayagraj. And this is in line with what has always been promised by UP Chief Minister, that bulldozers will raise down the illegal structures of gundas, is what is being said. And that's exactly what is being done. के 40 मुकदमे दर्ज हैं। यह मकान मसकुद्दीन की बहू के नाम पर दर्ज है। यह उनकी बहू और उनके जो बेटे हैं, बताया जा रहा है कि एक जो बेटा है वो टीचर भी बताया जा रहा है, उनकी पत्नी के नाम पर दर्ज है। लेकिन पुलिस के सूत्रों के अनुसार कि ये इन्वेस्टमेंट था मसकुद्दीन का, जो अपराध से अर्जित संपत्ति बताई जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ 40 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। अतीक अहमद का बेहद करीबी बताया जा रहा है मसकुद्दीन को। पूरा मुफ्ती थाना है प्रयागराज का, वहां का हिस्ट्री शीटर है मसकुद्दीन। और ये जो मकान है, इस मकान को लेकर के एक बात सामने आई कि बगल में एयरफोर्स स्टेशन है। एयरफोर्स स्टेशन की जमीन को कब्जा करके इस मकान को बनाए जाने की बात आई। हालांकि परिवार वालों का कहना है कि ये उनकी पुश्तैनी जमीन है, जिसको मसकुद्दीन ने अपनी बहू को दान में दे दिया। और ये दान का जो एग्रीमेंट है, रजिस्टर्ड है, वो उस रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के बाद उसके बाद इस मकान को लोन लेने के बाद बनाया है। लेकिन प्रयागराज विकास प्राधिकरण का कहना है कि ये जो जमीन है, इस जमीन को एयरफोर्स की जमीन बताई गई और जिस पर यह बुलडोजर चल रहा है। बहरहाल मसकुद्दीन और उनके दो बेटों और उनके दो भतीजों पर 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। मसकुद्दीन पूरा मुफ्ती थाने के हिस्ट्री शीटर हैं, जिनके इस मकान को इनकी बहू के नाम पर कागजों में ये दर्ज है। लेकिन प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि ये सिर्फ बहू के नाम का इस्तेमाल किया गया है, इसमें असल पैसा मसकुद्दीन का लगा है, जो कि अपराध से अर्जित कमाई है, जो उनके हनक से अतीक अहमद की करीबी होने के चलते जो पैसा कमाया, उससे ये मकान खड़ा किया गया, जिसको आज जमींदोज किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात कि प्रयागराज के पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र का ये इलाका है, ये आउटर इलाका है प्रयागराज का, ग्रामीण इलाका। इसके बाद कौशाम्बी जिला शुरू हो जाता है, वहां पर यह मकान बनाया गया। बगल में एयरफोर्स स्टेशन है प्रयागराज का, वहां पर यह मकान बनाया गया और हाईवे के किनारे ही है। करोड़ों की जमीन है, ये करीब 500 गज में, ये स्क्वायर 500 गज में बना हुआ ये मकान है और जिसकी कीमत यहाँ पर 3 से 4 करोड़ से कम नहीं आंकी जा रही है। लेकिन प्रयागराज विकास प्राधिकरण का कहना है कि पूरा मकान बिना नक्शा पास करवाए तो बना ही था। लेकिन पुलिस का अपना क्राइम एंगल भी है कि अतीक अहमद के करीबी मसकुद्दीन जो हिस्ट्री शीटर है, जो कभी अतीक अहमद के लिए शूटर के तौर पर काम किया, उनकी ये जमीन है, उनके द्वारा ये अपनी बहू को
दिखाने के लिए, कागजों में कानून से बचने के लिए ये जमीन दी गई और जिस पर ये मकान खड़ा है, जिसको आज जमींदोज किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से बुलडोजर और जेसीबी मशीनें एक साथ काम कर रही हैं। देखिए जो दो तस्वीरें आप सामने देख रहे हैं, दोनों तरफ से पूरे मकान को गिराया जा रहा है। Abhishek Mishra getting us all of those details and the pictures. A ground report saying that this, in fact, has been this house, this illegal structure, has been constructed on a piece of land that is, in fact, not where this structure was to come up. There is illegality in terms of the construction of this structure. However, speaking volumes of the kind of action that is being taken against the mafia and gundas in the state of Uttar Pradesh, bulldozers are getting, in fact, once again, they are getting rolled into these colonies in Prayagraj. This essentially is the third day of the bulldozer activity. से मसकुद्दीन और कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ अपराध से अर्जित संपत्ति है। अपराध से अर्जित संपत्ति के चलते ये अतीक अहमद गैंग से संबंध होने के कारण मसकुद्दीन की संपत्ति को जमींदोज किया जा रहा है। और जिसके बाद अब ये जो एक्शन हो रहा है, ये जो देख रहे हैं आप कि बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, चारों तरफ से बुलडोजर चलाया जा रहा है। और इस पर ये जो एक्शन हो रहा है, इसको पुलिस ने आपराधिक एंगल तो दिया है कि अतीक अहमद गैंग से जुड़े रहे, अतीक अहमद के लिए शूटर का काम करते थे। लेकिन जिस उमेश पाल हत्याकांड की बात की जा रही है, उस उमेश पाल हत्याकांड से आज मसकुद्दीन जिनकी बहू का घर ये गिराया जा रहा है, उसके कोई मतलब नहीं है, कोई कनेक्शन अभी तक नहीं बताया गया, कोई कनेक्शन अभी नजर नहीं आ रहा। लेकिन क्राइम एंगल जरूर है, क्राइम कनेक्शन जरूर है मसकुद्दीन का, और अतीक कनेक्शन भी है। अतीक के गैंग से जुड़े रहे हैं, अतीक के बेहद करीबी रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि वो तो अतीक के लिए शूटर का काम करते रहे, और यही वजह है कि मसकुद्दीन, उनको दोनों बेटे और भतीजों पर कुल 40 मुकदमे दर्ज हैं। इवन मसकुद्दीन पर 16 मुकदमे दर्ज हैं। तो ये बड़ी कार्रवाई अतीक अहमद के गैंग के ऊपर की जा रही है। Members of the Atique Ahmed gang being targeted one by one is what Abhishek Mishra is in fact telling us. Again, the bulldozers have rolled into this locality in Prayagraj, razing down a structure that belongs to the aid of Atique Ahmed, the key conspirator in the Umesh Pal murder case. And this is the third day of this demolition activity that is seen by the Prayagraj Development Authority. Action that had been promised by the Chief Minister of UP against gundas. गैंगस्टर एक्ट में 14 की कार्रवाई होती है। ये नियम कहता है कि अगर अपराध से अर्जित संपत्ति को खड़ा किया गया है, उदाहरण के तौर पर अगर आज मार्च 2023 के बाद से मेरे नाम पर अगर कोई संपत्ति आती है और आज ही पहली एफआईआर दर्ज होती है, जिस दिन से पहली एफआईआर दर्ज होगी उसके बाद से अर्जित सारी संपत्ति अपराध से अर्जित संपत्ति मानी जाती है। और उसको गैंगस्टर एक्ट में जब कार्रवाई करते हैं, संपत्ति जब्तीकरण की, संपत्ति के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है, तब इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाता, बुलडोजर चलता है। ये पुलिस एक्शन हो गया। वहीं दूसरी तरफ जो दो और तरीके हैं जिस पर बुलडोजर चलाया जाता, वो है एक सरकारी जमीन पर कब्जा करके, कि ये सरकारी जमीन, किसी भी सरकारी जमीन, चाहे वो ग्राम समाज की जमीन हो, जैसे कि इस जमीन को बताया जा रहा है कि एयरफोर्स की जमीन है, हालांकि परिवार इसको खरीद कर रहा है, उनका कहना है ये हमारी पुश्तैनी जमीन है। तो अगर किसी सरकारी जमीन को कब्जा करके कोई इमारत खड़ी की गई है तो उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा, उस सरकारी जमीन को खाली कराया जाएगा। और तीसरा जो प्रावधान है वो कहता है कि अगर किसी भी निजी जमीन पर कोई इमारत खड़ी होती है, लेकिन वो लोकल बॉडी, लोकल अथॉरिटी से, चाहे वो डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, उससे अगर उसका मैप पास नहीं है या नक्शे से अधिक वो बनाया गया तो उसको जमींदोज किया जाएगा। इन 3 फैक्टर्स के साथ ही बुलडोजर चलाया जाता है। क्राइम एंगल होगा, यानी कि अपराध से अर्जित संपत्ति होगी, और अगर बिना नक्शा पास कराए सरकारी जमीन पर कब्जा करके संपत्ति खड़ी होगी, तो इन 3 परिस्थितियों में ही बुलडोजर चलाया जाएगा। और यहाँ पर मसकुद्दीन में तो तीनों कनेक्शन है, ये अतीक अहमद के भी करीबी रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इनके खुद के ऊपर, इनके परिवार के दोनों बेटे, इनके भतीजे के ऊपर 40 मुकदमे दर्ज है, मसकुद्दीन के ऊपर 16 मुकदमे दर्ज हैं। पूरा मुफ्ती थाने के हिस्ट्री शीटर बताए गए हैं। तो अपराध से अर्जित संपत्ति की आशंका जताई गई है। हालांकि कागज में मैं फिर कहना चाहूंगा कि दस्तावेजों में ये मकान मसकुद्दीन की बहू के नाम पर दर्ज है, जो सरकारी टीचर है, और सबसे बड़ी बात कि इस मकान पर लोन भी लिया गया है। तो ये कागजों में ये किया गया है, लेकिन पुलिस को अंदेशा है
कि ये अपराध सर्जित संपत्ति है। और दूसरी तरफ एक तर्क ये भी सामने आ रहा है कि एयरपोर्ट की सरकारी जमीन पर कब्जा करके मकान बनाया गया है। परिवार इसका भी तर्क अपना दे रहा है कि उनके पास कागजात है। Getting in details from the bulldozer that is now in fact raising down an illegal structure, as is being said by the Prayagraj Development Authority, of an aide of Atique Ahmed. In fact, we've seen several instances of bulldozers getting rolled in, raising down illegal structures belonging to members of these gangs. This is in fact a member of the Atique Ahmed gang, Masukuddin. इस मकान में अभी कोई रह नहीं रहा था। ये मकान तैयार करके जिसको कहते हैं कि कुरान खानी करके यानी पूजा पाठ करने के बाद इसमें शुरू होनी थी, इसमें रहना शुरू करते, लेकिन उससे पहले ही इसको जमींदोज किया जा रहा है। आज सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो लोग भी सामने आ रहे हैं वो लोग या तो जो मकान मालिकिन है, मतलब जो मसकुद्दीन की जो बहू है, उनके चाचा, उनके पिताजी नजर आ रहे हैं। मसकुद्दीन के दोनों बेटे यहाँ पर अभी मुझे नजर नहीं आ रहे। मैंने सभी से पूछा कि मसकुद्दीन कौन है, उनके पति कौन है, तो वो नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन वो महिला नजर आई, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। उनके चाचा और पिताजी से हमारी जरूर बात हुई, जो मसकुद्दीन के जो समधी हैं उनसे बात हुई, तो उनका कहना है कि ये तो मकान उनकी बेटी के नाम पर दर्ज है, और जब बेटी के नाम पर दर्ज है, बाकायदा लोन लिया हुआ है, तब उसको क्यों गिराया जा रहा है। लेकिन इसके नाम पर लोन भी लिया हुआ है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि एयरपोर्ट की जमीन को कब्जा करके बनाया गया। और जाहिर है कि बगल में, मैं बताऊं कि इस मकान के ठीक बगल में मुझे एयरफोर्स की बाउंड्री भी नजर आ रही है। जो मकान है यहाँ से महज 50 मीटर की दूरी पर ही एयरफोर्स की बाउंड्री होती है। प्रशासन कह रहा है कि एयरफोर्स की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया है, और वहीं घर वालों का कहना है कि ये उनकी पुश्तैनी जमीन है। दस्तावेज वो दिखा रहे हैं, उसका दाखिल खारिज दिखा रहे हैं, उसका लोन बता रहे हैं कि इस पर लोन लिया गया है। करीब 40 लाख रुपए की कॉस्ट पर यह मकान खड़ा किया गया है। बहरहाल प्रशासन ने आज प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अतीक अहमद गैंग से जुड़े मसकुद्दीन के मकान को जमींदोज किया है। ये मकान दस्तावेजों में मसकुद्दीन की जो बहू हैं उनके नाम पर दर्ज बताया जा रहा है। जी गौरव जी। Bulldozers there, in fact, pulling down illegal structures as per the orders of the government there, and in line with what has been said by Chief Minister of UP, that this kind of action, but bulldozers raising down illegal structures and members of such gangs like this one is going to continue. This is the house of Masukuddin, part of the gang of Atique Ahmed, remember, who is in fact facing charges of involvement in the Umesh Pal murder case. He's a neta turned goon. दिन है। पहले मकान से शुरू करते हैं। जफर अहमद खान का मकान था जिसको गिराया गया, जिसको बिना नक्शा पास करवाए बनाया गया। जफर अहमद खान के वकील, जो अतीक अहमद के भी वकील हैं, वो कहा गया कि ये मकान खरीदा गया और उसमें शाइस्ता रहती थी, जो अतीक अहमद की पत्नी है वो रहती थी। उनके मकान को गिराया गया। कल जिसका मकान गिराया गया वो SSA गन हाउस है यहाँ पर जॉनसन रोड में प्रयागराज में, उनके मकान को गिराया गया। हालांकि पुलिस प्रशासन का कहना था कि वो अतीक अहमद से जुड़े हैं, लेकिन उनका वो पूरा परिवार सामने आया था। देखिए, आज जो 3 दिनों में कार्रवाई हुई है, ये कल जो जिनका घर गिराया गया था उनके घर वो पहली बार सामने आए थे, उनका पूरा परिवार सामने आया था। और उनके परिवार का कहना है, जो घर के मालिक थे, उनके दोनों बेटे थे जिनका SSA गन हाउस है, उनका कहना है कि हमारा अतीक अहमद से कोई रिलेशन नहीं है, हम तो यहाँ पर रह रहे हैं और हमें प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने कभी नोटिस भी नहीं दिया। तो अभी कोई भी परिवार अभी कोर्ट की शरण में तो नहीं जाने की बात सामने आई है, लेकिन इतना जरूर है कि उनकी अपनी नाराजगी है। कल जिस तरीके से नाराजगी आई थी कि हमें नोटिस नहीं दिया गया, और वहीं दूसरी तरफ आज भी जिस तरीके से परिवार की नाराजगी है कि हमको बताया नहीं गया। और सबसे बड़ी बात कि मसकुद्दीन का ये मकान नहीं है, उनका कहना है ये मकान तो उनकी बहू के नाम पर दर्ज है। बहू ने ये लिया हुआ मकान, बहू को उन्होंने ये जमीन दान में दी थी और जिस पर उसने अपना लोन लेकर के मकान बनवाया है। तो ये एक बड़ी बात है जिस पर मसकुद्दीन के बहू के मकान के ऊपर ये कार्रवाई की जा रही है। हालांकि जो पुलिस के अफसर हैं कैंप जी And the bulldozer action continues against the mafia and gundas in the state of Uttar Pradesh. And this comes just few days after, on the floor of the assembly, also Yogi Adityanath had spoken about crushing the Mafia Raj in Uttar Pradesh. Mafia ko mitti mein mila denge is what was said
by Chief Minister of UP, and that's exactly what's happening. While the person whose house is getting razed says that this is not illegal, and this is in fact his daughter-in-law's house. जब से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलना शुरू किया है, तब से अपराधियों की संपत्ति की जब भी चर्चा हुई तो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी ये दो नाम ऐसे थे कि या तो उनके परिवार वालों, उनके नजदीकियों, उनके गुर्गों, उनके लोगों पर संपत्ति पर बुलडोजर चला है। और अतीक अहमद के गैंग के ऊपर जिस तरीके से आरोप लगा कि बीते शुक्रवार को उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उस उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ये तेजी जरूर आई है। यह अभियान पहले से चल रहा था, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड के बाद से तेजी जरूर आई है कि लगातार 3 दिनों से बुलडोजर चल रहा है। पहले दिन जफर अहमद खान के घर पर, जिसने अतीक की पत्नी को शरण दी थी और जहां पर शूटर शाइस्ता से मिलने गए थे। दूसरा मकान सफदर अली का, जो सफदर अली गन हाउस चलाते हैं, लेकिन उनका अतीक अहमद गैंग से कोई कनेक्शन सामने नहीं आया, कोई क्राइम कनेक्शन सामने नहीं आया, कोई उमेश पाल हत्याकांड से कनेक्शन सामने नहीं आया। आज तीसरा दिन जो मसकुद्दीन का, जिनका बताया जा रहा है कि मसकुद्दीन की ये बहू के नाम पर ये मकान दर्ज है, मसकुद्दीन के ऊपर जरूर मुकदमे दर्ज है, उनके दोनों बेटे और भतीजों कुल मिलाकर के 40 के लगभग मुकदमे दर्ज हैं। वो पूरा मुफ्ती के हिस्ट्री शीटर बताए जा रहे हैं, अतीक अहमद के भी करीबी बताए गए हैं, जिस पर कि ये कहा जा रहा है कि प्रशासन का कहना है, पुलिस सूत्रों का कहना है कि ये मकान बेसिकली मसकुद्दीन ने अपनी जो अपराध से जो कमाई थी उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर अपनी कागजों में अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने ये मकान, ये जमीन अपनी बहू को दान में रजिस्टर्ड कर दी थी और जिसके बाद ये मकान बनाया गया। लेकिन जो परिवार का कहना है कि उनका लोन के द्वारा मकान बनाया गया। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने उमेश पाल हत्याकांड के बाद करीब 2 दर्जन ऐसे लोगों को चिन्हित किया है जो अतीक अहमद के करीबी हैं, चाहे वो गुड्डू मुस्लिम हो, मोहम्मद फैजान हो, या जो भी नाम सामने आ रहे हैं। जो अतीक अहमद, उमेश पाल हत्याकांड के साथ तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी जानकारी है कि ये अतीक अहमद के दम पर प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं, गुंडई कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, जिनका अपना हिस्ट्री शीट है, चाहे वो गुड्डू मुस्लिम हो, चाहे मोहम्मद गुलाम हो, या दूसरे नाम अरमान का नाम सामने आया। तो ऐसे तमाम लोग जिनके की कनेक्शन सामने आ रहा है अतीक अहमद या उमेश पाल हत्याकांड से, उन सभी की फेहरिस्त तैयार की गई है और उन सभी के ऊपर बुलडोजर चलाने की बात की जा रही है।